Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start off our discussion with the transport in animals. So first of all, let's have a look at the big picture of this particular subsection. इस subsection में सबसे पहले हम evolution of circulatory system पे थोड़ी सी बात करेंगे. Secondly, we will talk about the difference between open and the closed circulatory system. Thirdly, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म को हम अंडरस्टैंड करेंगे. फोर्थली, हम कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम पे थोड़ी सी बात करेंगे. एंड देन लास्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट. So let's start off with the evolution of the circulatory system in animals. So I have got a question for you. Diffusion is process involved in movement of materials into and out of cells in which organism or organisms? A option is Hydra, B option is Planaria, C option is human small intestine, and D option is all of these. The best response to this question would be delta, right? हाँ, ये अलग बात है कि हाइड्रा और प्लेनेरिया में only diffusion and osmosis they are sufficient to fulfill all the requirements of the transport. लेकिन humans के अंदर of course we would have to have the more complicated mechanisms for transport of the materials in so much huge body. लेकिन diffusion जो है ये process सभी organisms के अंदर involved होता है in the transport of materials in and out of the cells. Another question. Ectodermal cells in Hydra get food from endodermal cells by which process? A option is diffusion, B option is active transport, C option is endocytosis, and D option is exocytosis. And the best response to this question is again the diffusion. जो ectodermal layer है वो endodermal layer से diffusion के जरिए food लेती है. All right. So now let's talk about the evolution of the circulatory system. You seen here, circulatory system is it first time evolved in the phylum Annelida. ये एक potential multiple choice question हो सकता है. ये इस सबसेक्शन का तो नहीं, लेकिन of course जो फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया है उस सबसेक्शन से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन हो सकता है. पर यहाँ पे मैंने उसका क्रॉस लिंक दे दिया है चूंकि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम इट फर्स्ट टाइम इवॉल्व्ड इन द फाइलम Annelida, right? For organisms before annelids, right, simple diffusion and active transport would suffice. Okay? Annelids से पहले जो है simple diffusion या active transport यही उनकी transport की needs को fulfill करने के लिए more than enough है. लेकिन जो annelids हैं first time in the evolution जो है क्या हुआ, annelids के अंदर circulatory system evolve हुआ. All right. जैसे आप इसमें एग्जांपल्स देखेंगे स्पॉन्जेस, हाइड्रा, प्लेनेरिया, निमाटोडा, राइट? So they don't need any system for the transport. हमें पता है कि अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो उसमें 10 फाइला हैं. उसमें जो फर्स्ट फाइलम है वो कौन सा वाला है? फाइलम पोरिफेरा. एंड इस तरह से सेकंड फाइलम जो है वो कौन सा है? फाइलम नाइडेरिया. थर्ड फाइलम फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस. फोर्थ जो है वो फाइलम निमाटोडा. जो फिफ्थ फाइलम है दिस इज अ फाइलम एनेलिडा. तो पहले जो फोर फाइला है, पहले फोर फाइला उनके अंदर किसी किस्म का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता, राइट? सो एनेलिड्स जो थे ये फर्स्ट एनिमल्स है यू कैन से ओवरऑल जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व हुआ. सो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम इवॉल्व्ड इन, राइट, इसका आंसर क्या होगा? एनेलिडा. ये अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम इवॉल्व्ड इन, अगेन आपका आंसर होगा एनेलिडा. अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम इवॉल्व्ड इन, तो इसका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा. दिस इज अ पैराडॉक्स.
कि आर्थ्रोपोड जो है वो एनिलिडा की निस्बत मोर एडवांस्ड है। सो आर्थ्रोपोड्स आर मोर एडवांस्ड। लेकिन अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, दिस इज मोर एडवांस्ड। आर्थ्रोपोड्स as a group of animals are more advanced. The closed circulatory system as a circulatory system, this is more advanced. तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम जो इवॉल्व हुआ वो इवॉल्व हुआ था एनिलीड्स के अंदर, राइट। वो एनिलीड्स में इवॉल्व हुआ लाइक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। और भले वो एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम है लेकिन वो रिलेटिवली मोर प्रिमिटिव फाइलम के अंदर पहले इवॉल्व हुआ है। और जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है खुद से ये रिलेटिवली प्रिमिटिव सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन ये इवॉल्व हुआ इन द आर्थ्रोपोड्स। सो आपने केयरफुली इस बात को याद रखना है कि आपसे एक क्वेश्चन तीन तरह से पूछा जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम किन में इवॉल्व हुआ? एनालिडा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किन एनिमल्स में इवॉल्व हुआ? एनालिडा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम किन एनिमल्स में इवॉल्व हुआ? आंसर इज आर्थ्रोपोडा, एंड सो ऑन। Now let's talk about the difference between open and the closed circulatory system. Statement है हमारे पास, एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। Which term is used for blood sinuses in open circulatory system? The A option is lymphocyst, B option is hemolymph, C option is hemocoel, and D option is hematocyte. तो ब्लड साइनसेस के लिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है? एंड द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज हेमोसील, राइट। तो व्हाट डू यू थिंक, जो हेमोसील है ये ट्रू सिलोम है या ये स्यूडो सिलोम है? हेमोसील इज अ ट्रू सिलोम और दिस इज अ स्यूडो सिलोम। तो ये याद रखना, ये हेमोसील है, ये हेमीसील नहीं है, राइट। सो हेमो मीन्स ब्लड and seal it's pertaining to silome. So this is actually a body cavity which is actually having the blood, इसलिए हम इसको hemocoel बोलते हैं। और hemocoel जो है without exception true silome ही है। This is true silome। बहुत सारे बच्चे hemocoel को perceive करते हैं as a pseudo silome, लेकिन ये true silome है। All right. So now let's construct a table of the open and the closed circulatory system. In the extreme left column, we have got the feature. In the middle column, we have got the open circulatory system. And in the right column, we have got the closed circulatory system. So, first of all, let's discuss whether blood is confined to blood vessels in these systems or not. So, you see in here, कि open circulatory system में blood it is not confined to the blood vessels. कि ब्लड सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो ब्लड वेसल्स से बाहर भी निकलता है और वो आके इन डायरेक्ट कांटेक्ट आता है विद द सेल्स, विद द जनरल सेल्स ऑफ द बॉडी, ऑफ कोर्स नॉट द ब्लड सेल, विद द जनरल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, लाइक इन इट द ब्लड इज एक्चुअली कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल्स। ब्लड कभी भी ब्लड वेसल से नॉर्मली बाहर नहीं आता और आके डायरेक्टली सेल्स को बात नहीं करता, राइट। सो इट्स नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सेल्स ऑफ द बॉडी। अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स आपको नहीं मिलेंगी, ऑफ कोर्स, राइट। सो ब्लड जो है वो आपको हीमोसील के अंदर ही मिलेगा। जबकि इफ यू टॉक अबाउट द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स ऑफ कोर्स मिलेंगी। और वो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होंगी? यू वुड हैव द आर्टरीज, कैपिलरीज एंड द वेन्स। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज में ब्लड जाएगा, वहां से अल्टीमेटली कैपिलरीज में और वहां से अल्टीमेटली वेन्स में ड्रेन होगा। सो वहां से हार्ट में जाएगा और इस तरह से ये दोबारा सर्कुलेट होता रहेगा। सो इट वुड स्टे इनसाइड द ब्लड वेसल्स, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्लोज्ड। If you talk about the excretion of nutrition and the waste you see here, right? So sorry, exchange of nutrition and the waste. It's not excretion, it's exchange of the nutrition and the waste. तो जो exchange जो होगा
ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद सेल्स और ब्लड के दरमियान न्यूट्रिशन और वेस्ट का, वो कैसे होना है, ये डायरेक्टली होगा बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज, राइट। से टिश्यू सेल्स हैं, से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये टिश्यू सेल है, इसके डायरेक्टली ब्लड आ जाना है, इसके ब्लड आ जाएगा वेस्ट सेल्स के अंदर, इसके अंदर चले जाएंगे और ब्लड के अंदर से जो यूजफुल मटेरियल है वो सेल्स के अंदर चला जाएगा। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। उसमें आपको पता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनके अंदर सेल्स के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड जो वो प्रेजेंट होता है, जिसके जरिए एक्सचेंज होनी होती है न्यूट्रिशंस की और वेस्ट की। फिर इफ यू टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस बाय ब्लड, तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये दिस इज अ पैराडॉक्स हियर, बहुत सारे बच्चे यहाँ से मिस्टेक करते हैं। भाई जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही नहीं होता, हीमोग्लोबिन इसके ब्लड के अंदर नहीं होता। तो इसीलिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रिलेटिवली मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है इन द आर्थ्रोपोड्स, या जिन उन एनिमल्स के अंदर जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऑल द वे हमने स्टडी भी किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका ग्रास ऊपर का, कि किस तरह से सेल्स की विसिनिटी तक जो है वो एक्सटेंशंस जारी होती हैं इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, राइट। तो जो अल्टीमेटली जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो ब्लड के जरिए नहीं होनी। सिंपली उसकी रीजन यही है, ब्लड के पास जब ट्रांसपोर्ट का फंक्शन गैसेस की कैरी आउट करने के लिए कोई पिगमेंट ही नहीं है तो ट्रांसपोर्ट कैसे कैरी करेगा। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो चूंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है ये होगी बाय द ब्लड। इफ यू टॉक अबाउट द कलर ऑफ द ब्लड, तो जो कलर है ब्लड का, ऑफ कोर्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में इट वुड बी कलरलेस, क्योंकि उसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले जो एनिमल्स होते हैं उनका जो ब्लड का कलर होता है दैट इज रेड, एंड दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन देयर। तो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मोर प्रिमिटिव है। लेकिन यहीं पे ये पैराडॉक्स है, देखें कि वैसे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके अंदर ये प्रेजेंट है, जैसे कॉकरोच, ग्रासहोपर वगैरह, ये मोर एडवांस्ड है, ये एनिमल्स मोर एडवांस है ओवरऑल। लेकिन इनके अंदर जो सिस्टम प्रेजेंट है वो प्रिमिटिव है।
लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है दिस इज मोर एडवांस, जैसे कि अर्थ फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द ओपन एंड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एग्जाम आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, लाइक एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, which of the following statement is correct or incorrect regarding open or closed circulatory system। एक ये क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम differs from closed circulatory system in having or lacking which feature। तो ये एक क्वेश्चन फॉर्मेट जो यहां से इस टेबल से हो सकता है। ऑलराइट, so here we've got a question, which things are transported in closed circulatory system? A option is oxygen, B option is carbon dioxide, C option is food and D option is all of these। So इन सभी को ट्रांसपोर्ट करना होता है closed circulatory system ने, best response would be delta here। Now if you talk about the circulatory system of the earthworm, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, which of the following is absent in earthworm? Blood, RBCs, hemoglobin or the WBCs? And the best response to this question is RBCs, they are absent in the earthworm। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो hemoglobin है that is directly dissolved in the plasma, they don't need to have the red blood cells। So this is a paradoxical information। Another question, which one is chief collecting vessel in earthworm? चीफ कलेक्टिंग वेसल जो है वो अर्थवॉर्म में कौन सी है? डॉर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, कमिशनल वेसल्स और सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। एंड द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज द सब न्यूरल ब्लड वेसल, ये चीफ कलेक्टिंग वेसल है। ऑलराइट, सो इफ यू टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, तो इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं क्विकली सम अप कर देता हूं। तो यू सीन हियर कि earthworm में there are 4 to 5 pairs of heart on the lateral sides of the esophagus in segment number 7 to 13। तो earthworm में सेगमेंट नंबर, चूंकि इनकी सेगमेंटेड बॉडी हमें पता है कि एनालिड्स को हम कहते ही हैं कि दे आर सेगमेंटेड वर्म्स। एनालिड्स का जनरल नाम क्या है? दे आर सेगमेंटेड वर्म्स। तो इनके अंदर जो सेगमेंट नंबर 7 to 13 है, 7 to 13 सेगमेंट के अंदर 4 to 5 पेयर्स ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं एंड दे पंप ब्लड फ्रॉम द डोर्सल टू वेंट्रल साइड ऑफ द वेसल्स। तो ये ब्लड को डोर्सल से वेंट्रल साइड पे वेसल्स की इसने हार्ट ने पंप करना होता है। तो ब्लड वेसल्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं अर्थवॉर्म के अंदर? यू हैव गॉट द डोर्सल ब्लड वेसल्स, द वेंट्रल वंस, सबन्यूरल and the subneural blood vessel and interconnected by the capillaries and the commissural vessel। और ये फिर interconnected होती हैं by the capillaries and the commissural vessels। Alright, so अब अगर हम बात करें इनके मैकेनिज्म की, सीन है अगर हम बात करें इनके मैकेनिज्म की, तो सीन हियर कि जो डोर्सल वेसल्स हैं, इन डोर्सल वेसल जो है इसके अंदर होगा फॉरवर्ड फ्लो। डोर्सल वेसल के अंदर जो अर्थवॉर्म की जो डोर्सल वेसल है उसके अंदर होगा फॉरवर्ड फ्लो। और इसने करना क्या है, ये मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि इसने सेगमेंट नंबर 14 ऑनवर्ड जो है इसने ब्लड को कलेक्ट करना है और फर्स्ट 13 के अंदर आगे इसने डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डोर्सल वेसल। फिर अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर एक होती है वेंट्रल वेसल, राइट? जो डोर्सल वेसल होती है ऑफ कोर्स ये होगी अर्थवॉर्म की बॉडी की अपर साइड के ऊपर, जो कि डोर्सल साइड ऑफ कोर्स, और वेंट्रल जो है वो लोअर साइड के ऊपर होगी जो कि उसकी वेंट्रल साइड है। तो वेंट्रल वेसल के अंदर होगा बैकवर्ड फ्लो और ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड को। जो सब न्यूरल ब्लड वेसल होती है इसके अंदर बैकवर्ड फ्लो होता है, राइट? और इसका काम क्या है? ब्लड को कलेक्ट करना वाया द कमिशनल वेसल्स और उसको देना टू द डोर्सल वेसल। कमिशनल वेसल्स के जरिए ब्लड को कलेक्ट करना और डोर्सल वेसल्स के जरिए और कमिशनल वेसल्स के ब्लड को कलेक्ट करना बॉडी से और कमिशनल वेसल्स के जरिए डोर्सल वेसल को दे देना, राइट? तो मैं डायग्राम की मदद से भी इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ।
लेकिन यहाँ पे आपने कुछ बातें याद रखनी है। चले बार मैं दोबारा इस स्लाइड की तरफ वापस आता हूँ, डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझा के। इस तरफ देखें कि ये जो है वो एंटीरियर एंड है अर्थवर्म का, और यहाँ पे ये हमारे पास पोस्टीरियर एंड है। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो ये जैसे इसकी ये बॉडी की ऑफ कोर्स लाइनिंग है, इसके अंदर आपको जो है वो ये वाली जो वेसल मिल रही है, दिस इज द डॉर्सल, जबकि जो ये वाली वेसल आपको मिल रही है, दिस इज द वेंट्रल वेसल, राइट। और उसके बाद फिर ये जो डॉर्सल और वेंट्रल वेसल्स हैं, राइट, ये आपस में किससे जुड़ी हुई हैं? ये आपस में डिफरेंट कमिशनल वेसल्स से जुड़ी हुई हैं, राइट। और इसमें एक ये जो है ओवरऑल ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, इसके साथ एसोसिएटेड जो यहाँ पे वो सब न्यूरल वेसल भी होगी, राइट। तो इसमें अब ये भी देखिए आप कि सेगमेंट नंबर 7 to 13 के अंदर जो है बेसिकली ये लेटरल हार्ट्स हैं, ये भी प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? सेगमेंट नंबर 7 to 13 के अंदर लेटरल हार्ट्स हैं, ये प्रेजेंट है, राइट। सो और इसके अंदर देखें कि ये बस यही ओवरऑल जो इसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इसमें फिर आप देखें कि इसके अंदर बेसिक आइडिया जो है वो अगेन वो इसके अंदर भी आर्टरीज होंगी, और उसके बाद फिर जो है ना वो कैपिलरीज, उसके बाद फिर वेन्स होंगी। बेसिक आइडिया इसके अंदर भी जो ओवरऑल जो वो सेम है, जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। अब इसमें देखिए कि क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आएगा। एक इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सी ब्लड वेसल है सर्कुलेटरी सिस्टम में जिसमें फॉरवर्ड फ्लो होता है? आंसर इज डॉर्सल। कौन सी ब्लड वेसल है जिसके अंदर फॉरवर्ड एंड जिसके अंदर जो वो बैकवर्ड फ्लो होता है? सो किसके अंदर बैकवर्ड फ्लो होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? वेंट्रल एंड द सबन्यूरल। जो बैकवर्ड फ्लो होता है ये होता है वेंट्रल और सबन्यूरल, इन दोनों के अंदर। अगर एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी वेसल है जो कि ब्लड को कलेक्ट भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, तो इसका आंसर क्या होगा? डॉर्सल ब्लड वेसल। कौन सी वेसल है जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करती है? आंसर होगा वेंट्रल ब्लड वेसल। अर्थवर्म में कौन सी वेसल है कौन सी वेसल है जो कि सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट करती है ब्लड को, और वो कमिशनल वेसल्स के जरिए डॉर्सल वेसल को दे देती है? तो इसका आंसर क्या होगा? सब न्यूरल, राइट। तो ये तीन तरह की वेसल्स हैं, इनसे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट वेज में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई वांट यू टू मेमोराइज दिस स्टफ फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अच्छा, जो हार्ट है, हार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके कितने पेयर्स हैं? हार्ट के कितने पेयर्स हैं? इसके मल्टीपल हार्ट्स हैं, तो हार्ट से कितने पेयर्स प्रेजेंट हैं, और वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं? 4 to 5 पेयर्स हैं 7 to 13 सेगमेंट के अंदर। और हार्ट ब्लड पंप कहाँ से कहाँ को कर रहा है? तो ये डॉर्सल से वेंट्रल वेसल्स की तरफ चाहिए ब्लड को पंप कर रहा होता है हार्ट। ऑलराइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, तो इससे रिलेटेड देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आरबीसीज आर नॉट इन्वॉल्वड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन विच ऑर्गेनिज्म? ह्यूमन, अर्थवर्म, कॉकरोच, बोथ बी एंड सी। बेस्ट रिस्पॉन्स इसका होगा बोथ बी एंड सी, कि इन दोनों के अंदर देखिए अर्थवर्म के अंदर हीमोग्लोबिन है, आरबीसी नहीं है। कॉकरोच के अंदर हीमोग्लोबिन भी नहीं है और आरबीसी भी नहीं है। तो अर्थवर्म के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ये कहाँ पे है? अर्थवर्म के अंदर हीमोग्लोबिन ये प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व्ड है। ह्यूमन के अंदर हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है और आरबीसी भी प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस ही की वजह से जो ब्लड होगा जैसे ह्यूमन और अर्थवर्म का ये रेड होगा एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बरल बीटा होगा। अब अगर हम बात करें सर्कुलेशन इन कॉकरोच की, तो जो इसका हार्ट है ये 13 चेम्बर्ड हार्ट है इन द पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस के अंदर प्रेजेंट है इन द मिड डॉर्सल रीजन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिड डॉर्सल रीजन में like 13 chambered heart present है, and each chamber has 2 lateral openings जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं। हर चैम्बर की 2 lateral openings हैं जिन्हें हम ऑस्टिया बोलेंगे।
And the elderly muscles they help in flow in the thoracic and the head region. Elderly muscles जो हैं they help in flow in the thoracic and the head region. Okay. So ये देखिए एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हार्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट, कितने चैम्बर्ड है, 13 चैम्बर्ड है, कहाँ पे प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल साइनस में और मिड डॉर्सल रीजन के अंदर, राइट। और इसकी जो लेटरल ओपनिंग्स हैं कॉकरोच की हार्ट की उनको क्या बोलते हैं, उनको हम ऑस्टिया बोलते हैं। और कौन से मसल्स हैं जो थोरेसिक और हेड रीजन ऑफ कॉकरोच में फ्लो में मदद देते हैं, तो आंसर इज एल्री एंड सो ऑन। अब ब्लड वेसल जो है इसके अंदर कॉकरोच के अंदर जस्ट एक ही ब्लड वेसल होती है जिसको हम एओर्टा का नाम देते हैं, जो कि हिमोसील में आके ओपन हो जाती है बाय हेड ऑफ हेड बाय अ फनल शेप्ड ओपनिंग, राइट। तो इसमें आप देखें कि जैसे ये आप देख सकते हैं कि इसके डॉर्सल मिड डॉर्सल रीजन के अंदर ये 13 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है, राइट। और ये हार्ट जो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि अल्टीमेटली इट ओपनिंग अप इनटू द एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा, जिसके आगे फनल शेप ओपनिंग है इनटू द हेड ऑफ द कॉकरोच, राइट। तो अल्टीमेटली होता क्या है इसके अंदर कि जो ओवरऑल जो ये हीमोसील से जो फ्लूइड है इसने एंटर होना है इनटू द हार्ट वाया द ऑस्टिया, राइट। वहां से इसकी पंपिंग होगी इनटू द एओर्टा, राइट। और ऑफ कोर्स इसकी जो एसोसिएशन होगी वो गट के साथ भी होगी, गट से इसके अंदर जो फूड ब्लड के अंदर दे दी जाती है समहाउ, और उसके बाद बहरहाल फिर ये जो है ये जो ब्लड है जिसके अंदर फूड है लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, राइट। तो अब ये जो ब्लड है ये हेड के अंदर ये इस एओर्टा से बाहर आ जाता है और ये बॉडी के सेल्स को बास करते हुए यहाँ से जाइए दोबारा ये अल्टीमेटली जाके हार्ट के अंदर एंटर होता है। तो इस तरह से इसके अंदर जाइए ट्रांसपोर्ट का फंक्शन जो है कैरी आउट किया जा रहा होता है। ऑलराइट, सो देखिए कि डॉर्सल वेसल जो है ये हीमोफिल में से ओपन होना है इन द हेड बाय अ फनल शेप्ड ओपनिंग। मैकेनिज्म देखिए क्या है कि एओर्टा से हीमोसील में जाना है ब्लड ने, वहां से पेरीविसरल, पेरीन्यूरल, पेरिकार्डियल साइनसेस के अंदर जाना है, वहां से अल्टीमेटली हार्ट के अंदर चले जाना है और इस तरह से सर्कल जाइए कंटिन्यू रहेगा। अब अगर हम एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट की बात करें तो इसी हियर एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन एम्फीबियंस, 0, 1, 2 और 3। तो एम्फीबियंस के अंदर जो है वो ऑफ कोर्स ये यहाँ पे ये 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ कंप्लीटली डिवाइडेड 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो किसके अंदर कंप्लीटली डिवाइडेड 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो नहीं होता। तो इसके अंदर क्रोकोडाइल, स्नेक, मैन और पिजन में से क्रोकोडाइल के अंदर जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता, राइट। क्योंकि क्रोकोडाइल जो है ये बेसिकली एम्फीबियन है, बाकी जो स्नेक है ये रेप्टाइल है, मैन मैमल है, पिजन चाहिए बर्ड है, तो इन सब के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो होगा। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर जो है अब हम इस टेबल को डिस्कस करते हैं। यू सीन हियर एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट से रिलेटेड ये टेबल है। इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में हमारे पास ग्रुप ऑफ एनिमल्स आ गया, फिर नंबर ऑफ चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसके बाद फिर सिस्टेमिक आर्च जो है इनके अंदर वो कैसी है। हम सिस्टेमिक आर्च या आर्चेज इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। फिशेस के अंदर जस्ट 2 चेम्बर्ड हार्ट है और इनके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई सेपरेशन नहीं है, और सिस्टेमिक आर्चिस या इनके अंदर सिस्टेमिक आर्च या आर्चिस बिल्कुल एब्सेंट है। एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है और इसके अंदर जो सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ये पार्शियल होती है, और आर्च वगैरह इसके अंदर भी कोई नहीं होती। इसके बाद फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन सब के हार्ट जो 4 चैम्बर्ड है, जिसका मतलब है इनके अंदर इन सब के अंदर 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होंगे, राइट। तो बहरहाल इन सब के अंदर जो है वो ये 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट्स हैं, और इसी वजह से इनके हार्ट के अंदर जो सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो कंप्लीट होगी। रेप्टाइल्स के अंदर ये देखिए एक पैराडॉक्सिकल इंफॉर्मेशन है कि रेप्टाइल्स के अंदर 2 आर्चेस होती हैं एंड दे अराइज फ्रॉम द कैवस विनोजम, राइट। जबकि बर्ड्स के अंदर राइट और वहाँ जो
मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यू का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहे आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है।
एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज और मैमल्स के अंदर लेफ्ट आर्च होती है। ये इंफॉर्मेशन जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि अब क्योंकि ये कंफ्यूज, इससे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर बेसिकली 2 आर्चेस होती हैं, राइट, जबकि बर्ड्स के अंदर राइट आर्च होती है और मैमल्स के अंदर लेफ्ट आर्च होती है। वंस अगेन रेप्टाइल्स में 2 आर्चेस, ऑफ कोर्स राइट एंड लेफ्ट दोनों हो जाएंगी। बर्ड्स में राइट आर्च और मैमल्स में लेफ्ट आर्च होती है इसकी एओर्टा की। So that's all about this subsection.